ask Tarun to say that dialogue for Rohit sir, especially for Rohit sir. ये दिल वाले जैसी फिल्में ही नहीं बनाते, बट ये इंसान भी बड़े दिल वाले हैं. Rohit, we would request you to please say something. It's been so much said about me. Suddenly I'm feeling special. By the way, I'm Rohit Shetty and not Tarun. We are almost looking like, it's just the difference of a jacket. And it was really hurting when I saw your photographs, because even I've gone through all that. all bald men look the same. At least 50%. Yeah. I have to tell my wife this. First of all, I would like to thank Bank of Baroda, Shankar, Ehsan, Loy, Vivek for supporting. I'm just immature. Yeah. I don't know from where I got a call and they came to my office and I just felt like doing it. It's nothing, okay, it's a big thing what I'm doing. Adopting 10 kids is not a big deal. And I think we all should come together, at least from the industry I can say, and support kids who are going through this, because people smoking and getting into cancer is a different story, but kids being born with it is different. And I think we should support them, help them, and to be very honest, it feels good, nothing else, supporting them. On the other hand, I would say we need to put, like last year I was in Singapore and you're not allowed to smoke anywhere. Rarely you get cigarettes, you know. And I think we need to have some stricter laws. You do susu on road and you're fined for 500 rupees. That can happen for smoking also, I think. We need to have some stricter laws. You know, we can do this program every year and we will support, but the laws need to get strict. Then only it will help, I think. You know, gutka has been banned, but still we get gutka, I think. Every film, जब फिल्म आती है तो सेंसर के बहुत इशू चल रहे हैं आजकल. एक सेंसर का डिस्क्लेमर लगाना पड़ता है, धूम्रपान पड़ेगा महंगा. और ये एक ऐसी महंगाई है जिसकी किसी को फिक्र ही नहीं है. You know कि सिगरेट पी रहे हैं आप और कुछ होगा आपके साथ. I think it's not manly, like Vivek and I was discussing. जो भी सिगरेट पीते हैं या जो गुटखा खा रहे हैं, I think हम सब मर्द बनते हैं कि हम we are men, हमको अपनी फैमिली की फिक्र है, हम फैमिली की देखभाल कर रहे हैं, बीवी पे रोब झाड़ते हैं कि अरे तुमको क्या पता मैं काम पे जा रहा हूँ, कैसे पैसे कमाता हूँ. आई थिंक मर्द वो होता है जो अपने विल पावर से लड़े, कि अगर सिगरेट सामने और वो नहीं पिए तो वो मर्द है. क्या बात. गुटखा सामने और उसे आदत है और एक दिन वो नहीं खाए तो वो मर्द है, आई थिंक. एंड at the end I could say to all the cigarette smokers is like कि उड़ाना है तो पतंग उड़ा लो यार, प्लेन उड़ा लो, कुछ नहीं मिले तो मेरी तरह स्कॉर्पियो उड़ा लो, लेकिन सिगरेट का धुआं मत उड़ाओ यार. Thank you very much. Thanks. Thank you so much, Rohit, but you joining with us for this cause means a lot to us. Really, thank you so much. Ladies, I'd like to say that tomorrow night they're going to rock Regale with the help of all the friends that are there. Why this is important is these concerts are not just important in terms of awareness, they're not just important in terms of bringing people together, but they're important because they touch the lives of two very important sets of people. Our cancer patients, who are either fighters or survivors. It gives them a whole new sense of inspiration, a sense of belonging to a community, a family, where they can rely on each other. I'd like to inform you guys that many people who come to CPA are coming from really deep interiors of India, जहाँ पे ना कोई आस्था है, ना कोई होप है, ना कोई आशा बची है, ना पैसे हैं. अगर पैसे भी हैं तो डॉक्टर नहीं है, सहूलियत नहीं है, facilities नहीं है. They come here. You'll see many of those who are from poor farming families sleeping on the roads outside Tata Memorial Hospital, who we as CPA try to reach out to, give them
एक छत प्रोवाइड करते हैं उनके बच्चों को, स्कूल में हम एंगेज करते हैं। कैंसर पेशेंट्स पूरी परिवार को साथ में लेके आते हैं, क्योंकि गांव में जो संपत्ति है, घर है, ज़मीन है, सब कुछ गिरवी या बेचकर आते हैं यहाँ पर मुंबई में। सो फॉर दिस वन इवनिंग, Shankar Ehsaan Loy and all our phenomenal singers sitting here will entertain them, engage them, make them smile. ये सबसे बड़ी बात है उन लोगों के लिए कि आप लोग उनके चेहरे पे खुशियाँ लाओगे, उसके लिए थैंक यू। And the other set of very important people who are standing on both sides and clapping, who don't make it to the stage, especially Anita over there, who's always hiding. लोग क्रेडिट लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये क्रेडिट से पीछे भाग जाती है। बट दिस फैमिली दैट आई एम सो प्राउड ऑफ, कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन, ऑल द वॉलंटियर्स, ऑल द यंगस्टर्स दैट आई सी दैट कम इन विद सो मच एनर्जी, स्कूल के बच्चों से लेकर कॉलेज के बच्चों से लेकर सम पीपल हु हैव बीन देयर मच लॉन्गर देन इवन आई हैव, ये कमिटमेंट जो लेकर आते हैं हमारे वॉलंटियर्स लास्ट 47 years, आई थिंक दीज वॉलंटियर्स हैव बीन द सोल ऑफ कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन। And tomorrow Shankar Ehsaan Loy will entertain them too. So I'd like to thank you for that. And ladies and gentlemen, I'd like to tell you that this is not the first time, not the second time. This is a hat trick for Shankar Ehsaan Loy for CPA 3 times. Thank you so much. Well, we've always supported causes. We've supported the Cancer Patients Aid Association, and we will continue to do so in the future. And for people who don't take this very seriously, about smoking and anti-tobacco, no tobacco day and all, I'd suggest visit the Tata Memorial Hospital and see the children out there who are being, teenagers and older people who have come there to be treated from the effects of tobacco. Where you'll see a little child with part of his mouth missing, and the things that I had. I attended, I was with my mother when she's a cancer patient, she's a cancer survivor, she was going there for radiation. And I was there with her for a few hours one day, and I saw all these patients. And that was the time I really thanked myself for quitting smoking, when I did. And I think, everybody should do that. And it's really necessarily an evil thing that is happening in our society. Thanks. Can we once again hear it for Shankar Ehsaan Loy? Now we have some very special and important people on the dais here with us. Why to miss this opportunity? We have some youth representatives in the audience who would like to ask a few questions to them. Yeah? Any questions anybody would like to ask? The government still, obviously got my question. It's a little bit of a complicated thing. We as CPA have been trying to reach out for larger bans, more comprehensive bans. But there are large industries in India, and we are not a very, we're an emerging economy. So we're not a very well entrenched and established economy. So a portion of farmers and BD workers, which is a large number, get very badly affected the minute we start to levy more and more pressure on the tobacco industry. But we as CPA have been campaigning and talking to the important people in Delhi, in government, to try and explain to them the cost of transferring all these farmers and skilling the BD workers into new jobs, better paying jobs, and giving them also a sense of progress, because tobacco, as you know, is a cash crop. So for deterring them from tobacco has to be a smooth transition. And instead of subsidizing them piecemeal, छोटा पैसा हर साल वो subsidy में डालते रहते हैं, instead of that, you pool that money into a larger fund and start this process of moving them, from migrating them from focusing on tobacco and generating the revenue on tobacco. You have to give them something else. You can't just shut down something. You can't say aaj se band. You have to transfer them into something else. So that's a process that will take. We've also tried to bring to the knowledge of people the cost that the costs of tobacco, not only in terms of financial, but even human capital. So financial burden in terms of government hospitals, primary healthcare centers, number of people, the number of cancer cases that are just growing so fast. I mean,
mouth and throat cancer in India is at the highest incidence in the world right now. I mean, we are the country that's suffering in terms of a worldwide average. We are the highest in the world right now. The numbers are astounding. So this is it's a process, and it will take time. And unfortunately, in our country, these things take a little too much time because administration has its own, system in which they move forward. But yeah, the effort is on, but it's a larger and long-term process. Thank you. I just want to add, once we say no to tobacco, production will automatically go down. टीवी से कि हम बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं टोबैको को बंद करें या कुछ भी, लेकिन जब फिल्मों की बात आ रही है, जैसे उड़ता पंजाब में ड्रग्स को लेकर बातें हो रही हैं, जब खुल के बात वहाँ पे फिल्म प्रेजेंट की जा रही है, तो इतनी आपत्ति आपके लिहाज से आप एज अ डायरेक्टर किस तरह देखते हैं, जब वो भी एक अवेयरनेस के लिए ही फिल्म बनाई गई है? वो प्रॉब्लम सेंसर बोर्ड का एक्चुअली, एंड प्रॉब्लम ये है कि एग्जैक्टली उसमें प्रॉब्लम क्या है वो किसी को पता ही नहीं चल रहा है. अगर आप वो लिस्ट देखें तो वो कह रहे हैं कि पंजाब निकाल दो, एमएलए नहीं बोलेंगे, एमएलसी नहीं बोलेंगे, वगैरह वगैरह. एंड व्हाई दे आर डूइंग दैट नोबडी नोज. दैट्स व्हाट इफ यू सी अनुराग एंड एकता एंड एवरीवन आर क्वेश्चनिंग द सेंसर बोर्ड के व्हाई. एंड जहाँ तक मुझे पता है या मैंने जो न्यूज़ चैनल्स में देखा, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें सेंसर बोर्ड को या किसी संस्था ने लेटर नहीं भेजा है. They are doing it on their own, and why they are doing it, we really don't know. My only thing is, what I'm worried of is, as a director and a producer, like when you make a film, a lot of money has been spent, and बहुत लोगों की मेहनत होती है. The film was supposed to release on Friday. I don't know what has happened today, and what they must be going through, they only know. It's like, to talk about an issue के उड़ता पंजाब को लेके जो भी हो रहा है is a different thing. न्यूज़ चैनल्स के लिए, पेपर के लिए, मीडिया के लिए. बट वो जो टीम जिन्होंने वो फिल्म बनाई है, वो लोग जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, दे मस्ट बी गोइंग थ्रू व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड एज अ प्रोड्यूसर एंड अ डायरेक्टर, बिकॉज द रिलीज वाज सपोज्ड टू हैपन ऑन फ्राइडे. According to the rules, if they don't get the certificate by tomorrow or day after, they won't be able to release the film. So, and it has always been happening with us now. And the problem here lies is that we all need to come together. I'm talking about the industry, and solve this problem once and for all. It will take time. Gradually, people have started raising their voices, and people are being heard. It will take a little time, but it will happen for sure. विवेक, आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट लोग ये भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है भारत के सरकार का भी प्रहलाद नीलानी को लेकर, तो आपका क्या टेक है इस चीज़ पे? आप किस तरह देखते हैं? और आप लगातार अवेयरनेस की बात करते रहते हैं, तो उसमें ड्रग्स को लेकर अवेयर जब पिक्चर कर रही है तो लोगों को दिखाने में क्या आपत्ति है? हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ. और जैसे रोहित ने कहा कि अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी संस्था ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो ये सेंसर बोर्ड का एक अपना आई थिंक इनिशिएटिव है, एंथुजियाज्म ज़्यादा है. और हम भी कुछ महीने पहले मिले थे राज्यवर्धन राठौर जी से, एंड मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत प्रो इंडस्ट्री हैं और चाहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री हमारी पनपे. और इंडस्ट्री में, जैसे रोहित ने कहा, कि अगर आप एन मौके पर, जब रिलीज़ का समय है, जब पैसे लग चुके हैं, मेहनत लग चुकी है, प्रमोशन चल रहा है, एन मौके पर अगर आप कोई चीज़ ऐसे बॉम्ब ड्रॉप करते हैं, तो दैट्स वेरी अनफेयर, एंड दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर एनी इंडस्ट्री. आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई पाबंदी लगाते हैं, तो इंडस्ट्री को बोलते हैं कि आप ये चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं. लेकिन जब मैन्युफैक्चर हो जाए और दुकान में बेचने का समय आए, तब आप बोलते हैं कि नहीं बेच सकते. दैट्स नॉट फेयर. तो हमारे साथ कुछ ऐसे ही हो रहा है, एंड वी होप दैट इंडिया मूव्स फ्रॉम censorship to certification. Certification is what the censor body is supposed to do. वो उनकी जिम्मेदारी है, वो उनका दायित्व है. लेकिन I think they are going beyond जो दायरा उनको दिया है, उससे कुछ ज़्यादा आगे जा रहे हैं. So, and I'm very confident that this government, which is a very progressive government, they will make sure that sweeping reforms are brought in. All right. Hi, Rohit sir. Here. Rohit sir. Hello sir. A bit confused. Even he has a mic. Sorry. Yeah. Yeah.
Hi Rohit sir, hi Vivek sir. I'm Sunil from Movie Talkies. Sir, I would like to ask you, superstars like Salman Khan, Shah Rukh Khan and Ajay Devgn also are like passive smokers, chain smokers properly. So what do you have to say about it? Because like people look up to them. क्या है ना, ये सवाल आपका चैनल के लिए। नहीं सर, मैं कुछ बोलूँगा उसका कटिंग बनेगा, फिर सलमान, शाहरुख और अजय का कटिंग आएगा सिगरेट पीते हुए। अपन सब आज मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी अपन नोबल कॉज के लिए आए तो आज अपन थोड़ा नोबली बिहेव करते हैं ना। हाँ। अभी मैं बोलूँगा कि हाँ उनको छोड़ना चाहिए, फिर तुम लोग जाओगे 1 घंटे में 3 कटिंग ढूंढोगे, एक कंपनी का मिल जाएगा अजय का, शाहरुख का कहीं वानखेड़े का मिल जाएगा, सलमान का कहीं का मिलेगा, वो कटिंग और मेरा कटिंग चलेगा। क्यों आज का दिन छोड़ देते हैं, अपन एक अच्छे कॉज के लिए आए। All right, guys, thank you so much for all those questions. With that, once again, Cancer Patient State Association would like to thank all their sponsors for their invaluable support. Bank of Baroda, International Gemological Institute, Avas Worldwide, One Foundation, Ad Club, Ginger Pia, Nexus Elite, Trident, Global Advertisers, Jess Food, FIO 104 FM, and Suds Resort. And special thanks to Bank of Baroda, who has supported the entire initiative in making this event a grand success. And one more time, can we hear it for all our esteemed guests who took out their time to be here with us today? Mr. Y.K. Sapru, Dr. Prakin Sukhaya, Shri O.K. Kaul, Dr. P.S. Pasricha, Mr. Harish Baijal, Rohit Sethi, Vivek Oberoi, Shankar Ahsan Loy, all the friends from music industry, and all of you all. Thank you so much, guys, for being here. Do not forget the concert tomorrow. It's at 6 p.m. रोहित जी कितना इमोशनल मोमेंट है आपके लिए? इमोशनल मीन्स इमोशनल से ज़्यादा है कि अगर आपकी वजह से कुछ लोगों की मदद हो जाती है और आपकी वजह से कुछ लोगों की हेल्प हो जाती है, जिससे आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आपकी ज़िंदगी को, और किसी और की ज़िंदगी को फ़र्क पड़ जाता है आपकी मौजूदगी से या आपकी मदद से। तो वो करना चाहिए। मेरा बहुत सिंपल है। था विचार कहाँ से? कुछ नहीं। ये लोग मेरे पास आए कि दे वांट मी टू बी हियर, एंड देन उन्होंने अपने संस्था के बारे में बताया, एंड दैट इज़ द रीज़न। फिर जो भी मैं कर सकता था अपने थ्रू वो मैंने किया। टेस्ट भी शो किया, ये बहुत हेल्पफुल है। सारे सीपीए वाले बता रहे थे, आपने कुछ चेक वेक कट करके इस तरह। यार मेरा ये ऐसा है कि मैं बताता नहीं हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। आई थिंक इस तरह की बातें पब्लिसाइज नहीं करना चाहता हूँ मैं, क्या और आई एम हेल्पिंग ओवर, मैं इस तरह का हूँ। इसके अलावा कोई जुड़ने वाला है बॉलीवुड से इस कॉज के साथ? आई डोंट नो यार, फिलहाल तो अभी तो मैं हूँ, और जब मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे मदद की ज़रूरत है या किसी को मुझे बोलना चाहिए तो आई विल डू दैट। कंट्रोवर्सी चल रही है सर, इसको किस तरह से देखते हैं, क्रिएटिविटी वर्सेस सेंसरशिप? देखिए बहुत ज़्यादा हो गया है, बेचारों को प्रॉब्लम उड़ता पंजाब की। आई थिंक जो भी मैंने उनकी सेंसर लिस्ट देखी है जो पेपर में आई थी, मेरी अनुराग से बात तो नहीं हो पाई। कुछ चीज़ों में मुझे लग रहा है कि ज़रूरत ही नहीं है, जैसे पंजाब नाम उड़ा देना, दूसरा मिनिस्टर्स नहीं बोल सकते, MLC नहीं बोल सकते, जो अगर मैं लॉजिक की बात करूँ, और तीसरा आप कुछ जगहों का नाम नहीं ले सकते, विच इज़ नॉट फेयर। एंड मेरा ऐसा मानना है कि आप एक बेसिक फिल्म सेंसर 11 फिल्म हो चुकी है मेरी, तो जितना मैं शायद वो बोर्ड में भी वो सारे मेंबर्स नहीं होंगे जब मैंने शुरू किया होगा। तो रूल ये कहता है कि आप एक बेसिक सेंसर करते हैं फिल्म, उसके बाद अगर कोई संस्था या कोई पॉलिटिकल पार्टी वो लेटर भेजती है, देन द सेंसर शुड रिएक्ट। इफ नॉट, देन द सेंसर डजंट हैव द राइट टू रिएक्ट दिस वे। क्या किसी ने उनको वो लेटर भेजा? अगर वो लेटर नहीं भेजा तो दे डोंट हैव द राइट टू रिमूव पंजाब फ्रॉम उड़ता। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर क्या रिलीज करेगा? उड़ता कैसे करेगा? आइए फ्राइडे को उड़ता देखो। अच्छा, पहला निलानी को निकाल देना चाहिए, रिजाइन
तू चाहता है कि मेरी फिल्म सेंसर ही नहीं हो। सी देखिए थोड़ा ज़्यादा हो गया यार। सी दिस इज द होल एसोसिएशन नीड्स टू लेकिन वो सब वो कह रहे कि मैं मोदी का चमचा हूँ, तो आप कैसे देखते हैं? देखो यार, फ्रॉम एन इंडिविजुअल एज अ डायरेक्टर फ्रॉम द इंडस्ट्री इट विल गेट इनटू पॉलिटिकल मेस। नहीं, लेकिन सर आपको देखिए वो उन्होंने बोला है, वो उनका काम है ना यार, वो उन्होंने बोला, उनको ऐसा लगता होगा, उसमें मैं क्या टपक पड़ूंगा बोलूं। अच्छा, जिस तरह से एकजुट हुई है इस चीज़ को लेकर, उसको आप किस तरह देखते हैं? इट्स अ गुड साइन कि हम सब साथ में आ रहे हैं। एंड एक मिनट बाइट लेंगे सर। तो रोहित, हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि जो आपके दोस्त हैं शाहरुख, अजय जी, इनसे तो आप एज एन फ्रेंडली आप इनसे कभी बात करते हैं कि भाई ये सारी चीज़ जो है शहर के लिए बहुत ही नुकसान होती है, आप उनसे बात? बचपन में हुई थी यार ये बात। मैं 43 का हूँ, वो 47 48 के। तेरे को नहीं दूंगा मैं कटिंग, मैं डायरेक्टर हूँ। वो आप एक लाइन आप बता तो सकते हैं अभी नहीं, पहले हम इसकी बात करें कि ऑलरेडी आउट तो हो ही गया। हाँ, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम सभी प्रेजेंट हैं कैंसर एसोसिएशन के लिए, आप भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, क्या फील करते हैं आप? कल आप लोगों का कॉन्सर्ट भी है। जी, मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। आई एम वेरी हैप्पी कि इस एक नेक काम के लिए मैं जॉइंट हुआ हूँ पिछले 5 सालों से। पिछले 5 सालों में ये मेरा तीसरा परफॉर्मेंस होगा इस प्लेटफॉर्म पर, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं 2 बार ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका हूँ, 2010 एंड 2014। हाँ, 2010 या 11। तो मैं इन 5-6 सालों में 2 बार परफॉर्म कर चुका हूँ और इस बार 2016 इंशाल्लाह कल भी परफॉर्म करने वाला हूँ। तो मैं बहुत खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को, और मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, तो इसलिए मैं इससे जॉइंट हुआ हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई तंबाकू नहीं खाया है, कभी स्मोकिंग नहीं की है। तो मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, मेरे जितने दोस्त हैं, मैं उनको ये एडवाइस देता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने मेरे फैंस हैं, जितने मेरे लिसनर हैं, कि प्लीज़ सेव योर लाइफ। तंबाकू, नो तंबाकू, नो स्मोकिंग। कल जो आपका कॉन्सर्ट है उसमें सुल्तान का भी गाना आप करने वाले हैं? डेफिनेटली करने वाला हूँ, बिकॉज मेरी लाइफ का, मेरे कैरियर का सबसे बड़ा सॉन्ग है। इससे पहले भी मेरे गाने आए हैं, जैसे बाजीराव मस्तानी, दीवानी मस्तानी हो गई, उससे पहले गुंडे जश्नेश का, धूम 3, मलंग मलंग, बट उनका एक अपना लेवल था। दिस इज़ फॉर भाई, ये भाई के लिए गाया है, तो भाई है तो सलमान भाई। और साल की सबसे बड़ी फिल्म, कहने की बात नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो सुल्तान तो बस सुल्तान ही है। और मैं उस साल की, मतलब क्या बोलूँ, आई कांट एक्सप्लेन टू माई फीलिंग। मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ कि मैंने ये सलमान भाई के लिए टाइटल सॉन्ग गाया। तो ये 2 लाइन हम चाहेंगे, बिल्कुल हो जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल। सात आसमां चीरे, अब ज़ात समंदर पीरे, चल ज़ात सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो बांधो, चल आज हथेली पे रख दी है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।